Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the different modes to express the strength of solution. All of you know solution. What does mean of solution? It is homogeneous mixture. It is homogeneous mixture of two or more than two different components. Homogeneous means uniformly mixed. When two solution uniformly or any two physical substance uniformly mixed together means the composition remains same as every part. Composition of two or more than two different components are same in each and every part or in each and every layer. That is the homogeneous. So, if solution contain only two components, that is known as binary solution, and more than two different components, trinary, like that. So, according to syllabus, here the solution given generally binary solution means only two component present. One component is known as solid. So, which one is lesser in quantity, lesser in amount, that is treated as solid, and which one excess in amount, that is treated as solvent. Which component, which one is excess in amount. So, in definition only here stated it is homogeneous mixture of two or more than two different component, but that component remain in liquid and solid or gases, it is not specify. That means any two physical state if homogeneously mix up together, then we say that is example of solution. So, just take example. Generally as then think when solid substance dissolve in liquid or water, that is known as solution. But now here in 11th standard you have to know any two physical state substance homogeneously mix up, that is known as solution. So, solid may be in solid, liquid and gas, and solvent also may be in liquid and solid. So, you can take example, suppose solid remain in solid state and solvent also in solid state. So, two different solid substance homogeneously mix up, that also comes under example of solution. So, example here you can take alloys. So, alloys is our homogeneous mixture of two or more than two different metals. So, another solid remain in solid state, it is in liquid, likewise solid as a solid and gas as a solvent. Similarly, two liquid homogeneously mix up, that is also example of solution. So, solution of liquid solid and liquid gas. Similarly, any two gas are homogeneously mix up, so that is also example of solution. Gas solid and gas liquid. So, in lower classes only the example given the solid substance dissolved in water, that is solution, but now in 11th standard onward you have to know any two physical state substance homogeneously mix up, that comes under example of solution. So, here you take example solid liquid, common example sodium chloride in water, sugar dissolved in water, that is solid liquid, and solid gas, the solid remain in solid state and solvent remain in gaseous state.
you can take as a smoke. So, carbon particle in carbon dioxide gas. Okay. Now, liquid here like the alcohol and water, both are in liquid state, and liquid solid example you can take. The solid remain in liquid state, but solvent as in solid state. So, you can take the example butter, water in lesser in amount liquid state, and fat remain in solid state. So, butter. So, liquid gas you can take example, the solid remain in liquid state and solvent as in gaseous state. So, fog you take one example, the water droplet mix in air, and gas any two gas, hydrogen and oxygen, nitrogen and oxygen. The same way solid gas. So, you take the hydrogen in nickel metal, and gas liquid. So, carbon dioxide gas is dissolved in cold drink or soda water, you can take. So, these are various type of example of solution. Now, come to the next point. Sometimes we use the solid and solvent, which substance comes under solid and solvent, but here notable things, there is no demarcation between solid and solvent. Suppose I ask you, give one example of solvent, you say the water, but if I tell water is a solid, can you agree? So, just you take example for that purpose. So, in about the solid and solvent, what I told, that component which lesser in amount, that is treated as solid, and which one is in excess amount, that is treated as solvent. So, just you take the 20 ml alcohol, mix in 70 ml water. So, here water is in excess amount, this one is little amount. So, alcohol water mixer, that is one example of solution. So, here the alcohol is treated as solid and water is treated as solvent, but suppose we take the 60 ml alcohol and 10 ml water. So, it is also homogeneous mixture, but here the alcohol is excess in amount, that is treated as solvent, and water is lesser in amount, that is treated as solid. So, you can't say which compound comes under solid and solvent, that depends upon the amount of the solid or solvent. So, it is clear. Now, come to the next point here, two term coming, the dilute solution and concentrate solution. So, just you take one example, suppose at home just we have taken one beaker and 100 ml water added here, 100 ml water. Now, just you a little sugar added into it. इस शरबत का टेस्ट आपको बहुत हल्का सा लगेगा, मतलब कहेंगे कि ये शरबत जो बना है उसका मिठास बहुत कम है, यानी इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, पावर बहुत कम है. तो sugar in water, if amount of solid is very less and amount of solvent is very large, then we say that is dilute solution. If amount of water is a little and the solid are in excess amount, that you can say that comes under the concentrate solution. So, dilute means less power, means the excess water,
compared to solid. But in concentrate, amount of water is little. So, it is clear dilute solution and concentrate solution. So, here the topic here, different modes to express the strength of solution. So, just think over this example, when थोड़ा सा हम इसमें शुगर डालें एक 100 ml वाटर में तो उसकी मिठास शरबत का बहुत कम होगा, लेकिन वाटर की मात्रा उतना ही रखते हैं और थोड़ा शुगर और बढ़ा दें तो उसकी मिठास बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा, पावर उसका बढ़ जाएगा। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ शुगर इसमें डालते जाएंगे इसका मिठास उतनी ही बढ़ता जाएगा। आप बोलेंगे कि शरबत ज़्यादा मीठा है या कंसनट्रेट है या इस शरबत का पावर ज़्यादा है, स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है। तो हम यहाँ जो बात करते हैं डिफरेंट मोड्स टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन एज अमाउंट ऑफ सॉलिड, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉलिड इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। Just try to understand. Sorry. अभी जस्ट बोले कि जैसे जैसे शुगर की मात्रा आप इसमें डालते जाएंगे शरबत का मिठास बढ़ते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, पावर बढ़ते जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगा। तो ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना ज़्यादा उसमें डाल रहे हैं। लेकिन सपोज ये यूनिट अमाउंट क्यों बोले कि अब उधर से सॉलिड डाल रहा है और इधर वाटर भी बढ़ा दे रहा है, तो आप कह नहीं सकते हो कि इसका पावर बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो एक को फिक्स करना होगा, इसलिए इसको इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को यूनिट रखा गया और अमाउंट ऑफ सॉलिड। तो अब ये बात है कि अमाउंट ऑफ सॉलिड किस में लेंगे, क्योंकि जनरल में हम लोग वेट हम लोग लेते हैं, ग्राम में भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में ग्राम मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट में भी ले सकते हैं। ये इसके टॉपिक के अंदर में हम अलग से समझाएंगे इक्विवेलेंट मास एंड ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल कंसेप्ट में आप समझे हैं ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम और ग्राम एटम, उसी तरह से इक्विवेलेंट मास पहले समझना होगा तब फिर ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको अभी हम बाद में अभी समझाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कहने का मतलब है कि वेट को आइदर यू कैन एक्सप्रेस इन ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम इक्विवेलेंट। ये दोनों केमिस्ट्री का लैंग्वेज है और ये जनरल बोलचाल के भाषा में किसी सब्सटेंस का वेट ग्राम में हम लोग बात करते हैं। एंड यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आप 1 लीटर सॉल्वेंट बात कर सकते हैं या 1 kg सॉल्वेंट बात कर सकते हैं। क्लियर? तो अब डिपेंड करता है किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ में अमाउंट ऑफ सॉलिड किस में ले रहे हैं आप, ग्राम में, ग्राम मॉलिक्यूल में, ग्राम इक्विवेलेंट में। और यूनिट अमाउंट सॉल्वेंट का जो बात कर रहे हैं वो 1 लीटर में बात कर रहे हैं कि 1 kg में बात कर रहे हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट मोड्स टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में पहला इसका मोड हम लोग बात करेंगे मोलरिटी, दूसरा मोड बात करेंगे मोलिलिटी, तीसरा हम लोग नॉर्मेलिटी, फोर्थ में आपका मोल फ्रैक्शन, 12th में आएंगे तो ये पार्ट आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा, सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट पेज में आपका एज इट इज़ आपको वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा, तब सेकेंड पेज में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। सॉल्यूशन एक अलग चैप्टर है 12th में, लेकिन यहाँ अभी फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास में आपका ये सिर्फ एक टॉपिक दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को किस किस तरीके में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए हेडिंग लिखे हैं डिफरेंट मोड्स टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंट मोड क्या है, यही है, मोलरिटी है, मोलिलिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन है। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हम लोग परसेंटेज में भी बात करते हैं। फिर तुम्हारा
more ppm, parts per million, parts per million। तो ये आपका डिफरेंट मोड है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे प्लेयर एक कॉमन वर्ड है, लेकिन यदि वो प्लेयर फुटबॉल लेके मैदान में उतरता है खेलने के लिए तो उसको फुटबॉलर बोलते हैं, और यदि वो क्रिकेट बॉल लेके उतरता है खेलने के लिए मैदान में तब उसी को हम लोग क्रिकेटर बोलते हैं। तो प्लेयर एक कॉमन वर्ड है, लेकिन उसमें हम लोग फुटबॉलर बोलते हैं, क्रिकेटर बोलते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एक कॉमन वर्ड है, यानी इसको शॉर्ट में आप ऐसे कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को हम किस किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज ए मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम। तो अभी जस्ट मैं बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जनरल डेफिनेशन है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये अभी जस्ट अभी बोला कि अमाउंट ऑफ सॉलिड को आप उसको किस में ले रहे हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ग्राम मॉलिक्यूल में ले रहे हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट में ले रहे हैं। ठीक उसी तरह यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को 1 लीटर में बात कर रहे हैं कि 1 kg में बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया गया है। जब आप अमाउंट ऑफ सॉलिड को ग्राम मॉलिक्यूल में लेंगे और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को 1 लीटर सॉल्वेंट की बात करेंगे तब उसको हम मोलरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। और यदि सॉलिड को ग्राम मॉलिक्यूल में ही रहने देंगे और यूनिट अमाउंट सॉल्वेंट को आप 1 kg सॉल्वेंट बात करेंगे तब उसको हम लोग मोलिलिटी में बात करते हैं। फिर नॉर्मलिटी में उसी तरह से जब हमारा अमाउंट ऑफ सॉलिड को हम ग्राम इक्विवेलेंट में बात करेंगे और 1 लीटर सॉल्यूशन में तब उसको हम नॉर्मलिटी बोलेंगे। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग कंपेयर करते हैं कि 2 कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो एक कंपोनेंट का अमाउंट एज ए मोल टोटल की रिस्पेक्ट में कम है कि ज़्यादा है। जैसे जितना ज़्यादा हुआ एक का अमाउंट टोटल की रिस्पेक्ट में उसका स्ट्रेंथ वैसे आएगा। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं मोल फ्रैक्शन में, हाउ मेनी मोल ऑफ 1 कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये मोल फ्रैक्शन में हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कंपोनेंट पहले सॉलिड लेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पहले आप लेंगे तो उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बात करेंगे। और परसेंटेज को तो जैसे हम लोग सिंबल देते हैं परसेंट का, तो आपका जैसे 20% सॉल्यूशन लिखते हैं कभी कभी, तो इसको समझाएंगे। फिर पार्ट्स पर मिलियन, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस एक्सप्रेस करते हैं, ये स्पेशल केस हो गया, मोलरिटी ही है। यहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, यहाँ भी ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड लेते हैं, वहाँ 1 लीटर लेते हैं, यहाँ 1 मिलियन लीटर लेते हैं, फ़र्क यही है दोनों में। तो चलते हैं हम लोग एक एक करके हम लोग इसका डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फिर इसका नेक्स्ट फेज आएगा आपका न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कम टू दी मेन पॉइंट। सो मोलरिटी डेफिनेशन जनरल वही है जो मैं पहले बोला कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ सॉलिड। अब अमाउंट ऑफ सॉलिड किस में ले रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम इक्विवेलेंट बात करेंगे और 1 लीटर या 1 kg। तो यहाँ डेफिनेशन आएगा मोलरिटी का, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल दैट इज मोल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड है। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं मोलरिटी का, जैसे आपको 2 लीटर में है डिज़ोल्व तो 2 से डिवाइड करना होगा, चूँकि डेफिनेशन में तो 1 लीटर बोला गया, 5 लीटर में डिज़ोल्व है तो 5 से डिवाइड करना होगा तब 1 लीटर में आएगा। तो यहाँ मोलटी हो गया ग्राम मॉलिक्यूल of solid by volume of
सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको हम लोग V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसको भी हम दो अलग अलग तरीके में कर सकते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल तो मोल कंसेप्ट से जान रहे हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इन प्लेस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, देन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड एंड इनटू V इन लीटर में। सपोज मान लो कि डाटा में 200 ml है, डेफिनेशन में बोलता है 1 लीटर में होना चाहिए, तो आपको ml को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ml है तो डिवाइडेड बाय 1000 वही ऊपर चला जाएगा। तो यही फॉर्मूला बन के क्या आएगा, वेट ऑफ सॉलिड इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देन डिवाइडेड बाय 1000 वही आपको यहाँ आ जाता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलरिटी को अकॉर्डिंग टू डाटा। अब यहाँ से भी एक रिलेशन आप ले सकते हैं, वॉल्यूम V हुआ मोलरिटी M हुआ, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूल। न्यूमेरिकल में ये सब फार्मूला आपको बहुत काम आएगा, आपको याद रखना होगा शॉर्टकट में कि दोनों का प्रोडक्ट आपका हमेशा कांस्टेंट आएगा, और जहां मोलरिटी होगा तो वॉल्यूम हमेशा लीटर में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डाटा में यदि ml में दिया है तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक रिलेशन है, ठीक है। तो एक और इससे हम लोग रिलेशन हम लोग निकालने जा रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा कि जब हमारा दो डिफरेंट स्टेज लेंगे, कि जैसे भी हम यहाँ पर घर में हम मान लो कि 2 लीटर वाटर ले लिए, वॉल्यूम इसका हम ले लिए 2 लीटर वाटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 ग्राम मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड डालेंगे। 5 ग्राम मॉलिक्यूल 292.5 ग्राम, just multiply by 58.5 molecular mass and into 5, so that much gram should be added. 5 gram molecule sodium chloride means this much gram, and added to this one, and just dissolve it and just find the molarity. So here molarity M1 you can write here, amount of solid 5 gram molecule and volume 2 that is 2.5 molar. सपोज ये सॉल्यूशन बनने के बाद फिर हम बोलेंगे कि 2 लीटर वाटर और ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा, सॉल्वेंट का मात्रा बढ़ गया तो इसका स्ट्रेंथ कम जाएगा, पावर कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो आपका अमाउंट तो वही है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो आफ्टर एडिंग 2 लीटर वाटर एंड जस्ट फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, सो तब आपका सेकेंड स्टेज में मोलरिटी कितना होगा, अमाउंट तो वही है उसमें डिजॉल्व, लेकिन वॉल्यूम अब 2 + 2 4 हो गया, तो ये आ गया 1.25 मोलर। तो जैसे वाटर बढ़ाएं तो इसका स्ट्रेंथ घट गया, पहले 2.5 था अभी 1.25 हो गया। ओके, अब यहाँ से अब एक चीज़ देखो कि यहाँ हम M1 V1 यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या पाते हैं, यहाँ M प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम दैट इंडिकेट द ग्राम मॉलिक्यूल। और ग्राम मॉलिक्यूल को यदि मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम में। मोल कंसेप्ट में आप सीखे थे ग्राम मॉलिक्यूल से ग्राम में बदलने के लिए। तो ये आपका M1 हो गया आपका 2.5 और वॉल्यूम जो हो गया आपका 2, तो ये कितना आ गया 5 ग्राम मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेज में आप ट्राई कीजिए M2V2, तो मोलरिटी आपका हो गया 1.2 और वॉल्यूम हो गया 4, तो ये भी आ गया 5 ग्राम मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड। तो आप देख रहे हैं M1V1 इक्वल 5 ग्राम मॉलिक्यूल, M2V2 इक्वल 5 ग्राम मॉलिक्यूल। कहने का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो इससे हमारा एक कंक्लूजन के रूप में एक अलग रिलेशन निकल गया, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हम क्लियर कर दिए ये रिलेशन कैसे लिख रहे हैं, M1V1 इक्वल M2V2। ऐसे डेफिनेशन में आपका क्या है, मोलरिटी इक्वल मोल वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम नीचे है तो मोलरिटी उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ घटेगा, ये घटेगा तो वो बढ़ेगा,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो दो का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, रिमेंबर इट। इसलिए उसके आधार पे भी ये हो गया m1 v1 इक्वल m2 v2। सपोज एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तीन सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन है, बी है, सी है, इसका स्ट्रेंथ कुछ है, वॉल्यूम कुछ है, इसका स्ट्रेंथ कुछ है। मान लो ये m1 है, ये v1 है, ये m2 है, ये v2 है, ये m1 है, v2 है, और इसको एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब मिक्स होने के बाद रिजल्टेंट का यदि आपको मोलिटी पूछेगा तो उसके लिए भी एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, कम्पशन वगैरह में आपको ये शॉर्टकट में मदद मिलेगा। तो इसके लिए रिलेशन लिखिए एम भी इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। इस तरह और भी होगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया मोलरिटी, और डिफरेंट फॉर्म में। न्यूमेरिकल हम लोग बाद में आएंगे, पहले तो हम सब फार्मूला और डेफिनेशन क्लियर कर देना चाह रहे हैं। तो यू noted down now. So just come to the molality. It is indicated by small m. So it is how many gram molecule of solid present in 1 kg solvent. Their own definition, how many gram molecule present in 1 liter solution. Here the statement, it is defined as number of gram molecule of solid present in 1 kg solvent. So mathematically you can write here small m equal gram molecule of solid by weight of solvent. Okay, and that weight should be in kg, 1 kg. So suppose data given in gram, that should be changed into kg, so divided by 1000, so that one will come here, gram molecule into 1000 by weight of solvent in gram. Okay, so likewise here molality you can express the strength of solution. Next mode, now to the third point, normality. It is indicated by capital N, and it is defined as number of gram equivalent of solid present in 1 liter solution. So here again you can write the mathematically normality equal gram equivalent of solid by volume of solution in liter. So same way you can write in different mode, gram equivalent like gram molecule given weight by molecular mass, here gram equivalent, that is given weight by equivalent mass. So weight of solid divided by equivalent mass. How you will find the equivalent mass? After this, that one will be discussed, equivalent mass and volume of solution in liter. So again you can write here weight of solid by equivalent mass into volume in ml, then you multiply by 1000 years. So likewise molarity you can write here cross multiplication, normality into volume, that indicates the gram equivalent, molarity into volume, that indicates the gram molecule, and when equivalent mass multiply to this one, that one convert into gram. You must note it down this one. And likewise previous case, the N1 V1 equal N2 V2, like 2-3 solution mix up together. For that formula, normality into volume resultant solution, and N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3. Okay. So now here new terminology coming here, the equivalent mass. So how you will find the equivalent mass?
So try to understand. Then further I will discuss the mole fraction. So equivalent mass. So all of you know the chemical substance classified as acid, base and salt, or as a oxidizing agent or reducing agent, and accordingly we have to find the equivalent mass of that. So just you write one formula: equivalent mass of acid. How will you find the equivalent mass of any acid? So you can write here molecular mass of acid by number of replaceable hydrogen. In acid, the hydrogen furnished that gives the hydrogen ion on dissolving, so that number of replaceable hydrogen ion. So just we find the equivalent mass of HCl. How much? Molecular mass, that one 36.5 divided by 1 here. So here the equivalent mass is same as it is the molecular mass, but you find the equivalent mass of H2SO4, you will get here 98 molecular mass divided by 2, here 2 replaceable hydrogen. So 49 is the equivalent mass. That is also in atomic mass unit. Here atomic mass unit, no, this one is also in atomic mass unit. So similarly you write the formula of for base: equivalent mass of base equal molecular mass of base by number of replaceable hydroxyl ion. Replaceable hydroxyl ion. So accordingly you take some example for base. So just you take the equivalent mass of sodium hydroxide, that molecular mass, that one 40 and replaceable hydroxyl 1. So its molecular mass and equivalent mass same. Similarly you find the equivalent mass of calcium hydroxide. So that is 16, 17, 34, 74 molecular mass divided by 2 replaceable. So that is 2 3 237. Okay. Likewise you can calculate the equivalent mass of any base. Now write down the formula for the salt. Equivalent mass of salt, any salt. So molecular mass divided by total charge of cation or anion or basic radical or acid radical present in that salt. So you can take some example to find the equivalent mass of any salt. Suppose you have to find the equivalent mass of sodium carbonate. This is salt. So molecular mass of sodium carbonate 106, and now here basic radical, here Na plus you write, 1 positive 2 sodium, yani 2 positive, or carbonate acid radical 2, that is having 2 negative charge. So divided by 2, either you know the basic radical or acid radical, you can find that one. So any one you take, either for acid radical or for basic radical. So that one 53. So suppose you have written here aluminum sulfate and you have to find the equivalent mass. So कितना सा आप इसको डिवाइड करेंगे, ये मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, 2 3 और अदर. सो यहाँ पर अल्युमिनियम का चार्ज कितना है 3+. तो आपका यहाँ 2 है तो 2 3 जा 6 से डिवाइड करना होगा. इसके मॉलिक्यूलर मास में आपको कितना से डिवाइड करना होगा, 6 से. या आपको मान लो इसको याद नहीं आ रहा है, सल्फेट का तो -2 है ना, तो होल 3 है तो 3 2 जा 6. आइदर एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल को आपको लिखना है और डिवाइडेड बाय दैट. उसी तरह से मान लो कोई एलिमेंट है, तब उसको कैसे निकालेंगे, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम को, सिंगल एटम है तो एटमिक मास लेना होगा पहले और डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी. उस
एटम का जो वैलेंसी होगा, जैसे हमको मान लो अल्युमिनियम एटम का लेना है इक्विवेलेंट मास, तो अल्युमिनियम का 27 और इसका 3 वैलेंसी है तो 9 इसका इक्विवेलेंट मास हो गया। ठीक है, उसी तरह से मान लो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कंसीडर करते हैं, तब आपको जानना पड़ेगा उसमें कितना गेन और लूज करेगा। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ इतना ही से काम चल जाएगा। एज ए एसिड बेस सॉल्ट कोई न कोई कैटेगरी में आएगा वो कंपाउंड, तो आप इस फॉर्मूला से लिखेंगे। और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तब तो इक्विवेलेंट मास में फिर मॉलिक्यूलर मास लेना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेन्स इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा रिएक्शन के दरमियान हो उतना से डिवाइड करना होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल और इक्विवेलेंट मास ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसको आप मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ रिमूवल इलेक्ट्रॉन, तो इक्विवेलेंट मास भी एटॉमिक मास यूनिट में है। तो जब इसको हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तब उसके लेके हमको देना पड़ता है नया टर्म ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। डेफिनेशन आप वैसे ही देंगे जैसे ग्राम मॉलिक्यूल का क्या दिए थे, व्हेन मॉलिक्यूल मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और मैथमेटिकली गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। यहाँ भी वैसे डेफिनेशन बनाएंगे, व्हेन इक्विवेलेंट मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट और मैथमेटिकली इट इज कैलकुलेटेड द गिवन वेट डिवाइडेड बाय any acid base salt or oxidizing reducing whatever, so given weight and now here equivalent mass, given weight of that substance and the divided by equivalent mass, that one convert into gram equivalent। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट इंटू ये इक्विवेलेंट मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट वेट कन्वर्ट इंटू वेट इन ग्राम। तो ये भी रिलेशन न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सो ऑल ऑफ यू मस्ट रिकॉल दैट द रिलेशन फार्मूला तरीका, इस मेथड को पकड़ना होगा। तो अभी तक हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को एज ए मोलिटी, नॉर्मलिटी और आप नॉर्मलिटी के बारे में समझें। अब हम इसको मोल फ्रैक्शन के बारे में और परसेंटेज का बता के ये थ्योरी पार्ट हम खत्म करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी करते हैं ना, जैसे हर का वेलोसिटी अलग अलग है लेकिन एक का वेलोसिटी दूसरे से कंपेयर करते हैं। यहाँ भी हम सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का अमाउंट हम टोटल के रिस्पेक्ट में जानते हैं कितना है, ज़्यादा कम, तो वो मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड लिखेंगे तब आपको ऐसे लिखना होगा स्मॉल एन बाय स्मॉल एन कैपिटल एन, जहाँ पर एन है स्मॉल एन मोल ऑफ सॉलिड, और हम लोग यहाँ मान लेते हैं कैपिटल एन जो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इसको हम लोग एफ सॉलिड करके लिखते हैं इसको। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यदि आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एन ऊपर आ जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ एक चीज़ है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम है, फिर ऊपर भी सेम आ जाएगा, 1 के बराबर आएगा। तो एक नोटेबल पॉइंट है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज यूनिटी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो इट इज़ क्लियर। ये आपको आगे बहुत काम आएगा इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग परसेंटेज। तो आउट ऑफ 100 में जितना अमाउंट सॉलिड डालेंगे वही परसेंटेज होगा। जैसे ये 20% सॉल्यूशन, मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम सॉलिड डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो इसको W बाय W में, W बाय V में या V बाय W में या V बाय V में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम W मीन्स वेट से है, V वॉल्यूम से है।
तो 20% सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, आउट ऑफ 100 में 20 है तो 20% हुआ। केवल सॉल्वेंट लेंगे तो देन आपको 80 ग्राम लिखना होगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट। तो ये दोनों का वेट में है इसलिए W/W। इसमें लिखना चाहेंगे तो 20 ग्राम सॉलिड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन या 80 ml सॉल्वेंट। उसी तरह से 20 ml सॉलिड प्रेजेंट इन, ये W ग्राम में है तो 100 ग्राम लिखना होगा सॉल्यूशन या 80 ग्राम सॉल्वेंट। उसी तरह से दोनों वॉल्यूम में लेंगे तो कौन वाला आप एक्सप्रेस करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द क्वेश्चन, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। 20% सॉल्यूशन को किसी रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट विच वन विल बी एक्सप्रेस, दैट विल बी द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है, ग्राम में, वॉल्यूम में, और जो चीज़ निकालना है ग्राम और वॉल्यूम में करना है, अकॉर्डिंगली हम लोग सेलेक्ट करके लिखते हैं। तो ये हो गया परसेंटेज, और एक है लास्ट में द ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं व्हेन द सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूट। एक्सट्रीमली डाइल्यूट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉलिड इज वेरी लिटिल इन अमाउंट कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका यदि आप इसको निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूल बाय वॉल्यूम, तो ग्राम मॉलिक्यूल मान लो 0.00 ट्रेस में है, 0.00025 ग्राम, तो आप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो और छोटा हो जाएगा, उसको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसको हम लोग 1 लीटर में नहीं निकाल के 1 मिलियन लीटर में लेते हैं हम लोग। तो बस ये फार्मूला वही है जो मॉलिटी का है, बस 1 लीटर सॉल्यूशन के जगह में 1 मिलियन लीटर लिखना होगा। तो ppm जो हो गया ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, हियर वॉल्यूम इन लीटर एंड डिवाइडेड बाय 10⁶, वो आपको यहाँ आ जाएगा। सो इस तरह से थ्योरी आपका डिफरेंट मोड ऑफ एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन समाप्त होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।